کا خیر بہت ادب کے لیے بہت میرا یا ریما متھیرا اور وہ دونوں اس تصویر میں موجود ہیں. پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ وہ دوسرا شخص آپ کے ساتھ تھا کون، اور اس کے بعد کہ آپ نے کیا سوچ کے شریف کہا، اور تیسری بات کہ وہ پوسٹ لگائی کیوں. اچھا اس سے پہلے میں بتانے لگوں کہ یہ پروگرام آن ایئر ہونے کے بعد میں ایک اور پوسٹ لگاؤں گا اور یہی کیپشن اس کا یہی ہوگا، بیسٹ ٹک ٹاکر. بیسٹ ٹک ٹاکر سب کی فیوریٹ پرسنالٹی جنت مرزا. جنت مرزا سب سے زیادہ سوشل. اب آپ کے پاس ایک لفظ ہے. ویسے ٹک ٹاکر کے نام پہ سیبا مرزا آج کل آپ کی نا بڑی اچھی آ رہی ہیں، ٹک ٹاک سے بڑا وہ لائکس میں دیکھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، چاہنے والوں، سننے والوں اور دیکھنے والوں کو جسٹس ٹی وی کے اسپیشل پروگرام ٹی ٹائم ود سیبا مرزا میں خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت مہمان موجود ہوتے ہیں جن سے ہم مزے کی گفتگو کرتے ہیں. ساتھ ہوتا ہے آپ کا اور مزیدار چائے کا. اسی کے ساتھ میں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں، جو بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے اور بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت سی کامیابیاں بھی سمیٹی. نجی ٹی وی چینل میں ایک بطور اینکر ابھی کام کر رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ میکینیکل انجینئر بھی ہیں اور اپنے زمانے طالب علمی کے بہترین مقرر رہ چکے ہیں. ساتھ ایک عدد والد بھی ہیں. جی ہاں، تو میں بنا کوئی وقت ضائع کیے ان کا انٹرو کرواتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید جرار حیدر نقوی. ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سیبا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کے انٹرو کے بعد تو ویسے ہی بانچیں کھل گئی ہیں کافی اور چیزوں پہ. نہیں، وہ کس بات پہ کھلی ہیں؟ وہ آپ نے کہا کہ بہت ساری اچیومنٹس ہیں ان کی، اور اگر والد ہونا اچیومنٹ ہے تو پاکستان کی آدھی آبادی جو ہے وہ اس اچیومنٹ سے نہیں وہ میں نے یہ بتایا کہ بیچارے جو لوگ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ساری اچیومنٹ ساتھ کے ساتھ ایک والد بننے والی بھی اچیومنٹ آپ کے حصے میں آئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چائے ٹی ٹائم ود سیبا مرزا میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کتنی پسند ہے؟ جیسا کہ اب میں نے کل بھی ایک سوال کیا تھا اپنے مہمان سے کہ چائے محبوبہ ہوتی ہے، تو وہ آپ کو کس حد تک پسند ہے کہ بس ایک ٹھیک ہے گزارا چل جائے، یا بہت ہر کام کرنے سے پہلے مجھے چائے ضروری ہے؟ چاہے جو ہے مجھے وہ جنون کی حد تک پسند ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کا جو ٹائم ہوتا ہے، زمانہ طالب علمی ہوتا ہے، ہاں، اس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی کے یا مزید باقی جو ہوتے ہیں وہ دو رخ اختیار کرتے ہیں. یا تو وہ چائے پیتے ہیں یا پھر سگریٹ پیتے ہیں، یا چائے اور سگریٹ دونوں پیتے ہیں. اچھا. تو ہمارا دور ایسا تھا کہ گیدرنگز تھیں، سوشل گیدرنگز ہوا کرتی تھیں، ڈیبیٹس سوسائٹیز کے ساتھ ایک تعلق رہا، وابستہ رہا. تو کھانا تو پوچھتا کوئی نہیں تھا، تو ساروں جس نے بھی پوچھنا اسے کہنا بھائی آئیں بھائی چائے پیتے ہیں. تو پھر وہ ایک چائے کا ایک ایسا رخ چلا کہ جہاں بیٹھتے چائے 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 چائے، تو دن کی روٹین میں 5 7 8 دفعہ چائے پینا ہوا کرتا تھا. تو پھر اس وجہ سے پھر چائے کا ایک ایسا جنون ہوا کہ پھر تو وہ زندگی کا ایک حصہ بن گئی. آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس حد تک ہے کہ وہ زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے. اب وہ ڈیلی 7 8 10 کپ. میں سوچ رہا تھا کہ یہ چائے کا کپ چھوٹا ہے آپ کا، بڑا ہونا چاہیے تھا. اچھا صحیح ہے، اگلی دفعہ ہم لوگ انشاءاللہ بڑا کپ رکھ لیں. مجھے یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوا کہ اگر آپ کا بہت زیادہ ہیکٹک روٹین ہوتی ہے، انسان تھک جاتا ہے کام کر کے، تو آپ نے کہا بہت زیادہ طلب ہو رہی ہو چائے کی، اور اس کے بعد آپ کو نہ ملی، اور کوئی ایسا کہ آپ نے کسی کو مارا پیٹا ہو یا ڈانٹا ہو اس حوالے سے؟ اتنی وحشت نہیں ہے چائے کے بارے میں، مگر یہ دہشت ہو سکتی ہے وحشت میں. چائے ہونی چاہیے، ضروری ہے. آپ کی تھکاوٹ تو اتارتی ہے، تھکان اتارتی ہے ذہنی طور پر، کیونکہ اس کے اندر کچھ آئٹمز بھی ہوتے ہیں، بایولوجیکل ٹرم میں نکوٹین ہوتی ہے، تو آپ کو تھوڑا بہت سکون بھی دیتی ہے. آج کل تو وہ لڑکے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ چیزیں یوز کر رہے ہیں آرام اور سکون کے لیے، مگر چائے جو ہے تو چائے کا مقابلہ نہیں ہے. مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو مارا پیٹا ہو. ہاں یہ ہوا ہے کہ کبھی دل کیا ابھی چائے پینی ہے تو اٹھے اور سب سے پہلے ہوٹل پہ، ہاں بھائی چائے چاہیے، باقی نہ کھانا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. مطلب اگر کھانا نہیں ملے تو پھر بھی ٹھیک ہے، چائے نہیں ملے تو پھر رولا ہے بھائی. اچھا جناب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ زندگی خدا کا ایک بہترین تحفہ ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور زندگی جن معنوں میں ہم لیتے ہیں وہ شاید ایک بڑی جو چیزیں ہیں
ज़िंदगी के मसाइल हैं, असल में हमारे सामने ज़िंदगी एक पूरा फ़लसफ़ा है। सही बात है। तो उस फ़लसफ़े को हम जब देखते हैं और हमने ये देखना है कि उस फ़लसफ़े को हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का हासिल और वसूल बना सकते हैं। बिल्कुल हाँ। तो मेरे लिए ज़िंदगी खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है और एक खुदा का तोहफ़ा है, जिसकी वजह से आज हम इस दुनिया में मौजूद भी हैं। और ज़िंदगी, अच्छा जो ज़िंदगी लफ्ज़ है, इसको कहा जाता है कि अगर आपकी सांस चल रही है तो आप जिंदा हैं, ऐसे नहीं है। जिंदगी जो है वो एक गुजारने और जीने में फ़र्क होता है। हम दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी के लिए, एक होता है कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरा होता है कि ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो ज़िंदगी है, और जो लोग गुजार रहे हैं, जैसे वो कल का एक वाक्य किसी ने कहा जी हर दाढ़ी वाला आलिम होता है, ठीक है, और बगैर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता। तो जो जी रहा है वो तो जिंदगी है, और जो नहीं जी रहा तो उसका कोई उसमें चीज़ नहीं कह सकते। बहरहाल जिंदगी एक बहुत बड़ा फलसफा है, इसमें मुश्किलात भी हैं, इसमें आसानियां भी हैं, इसमें इम्तिहानात भी हैं। तो आप इसे कह सकते हैं कि अगर सबसे बड़ी कोई चीज़, जैसे एक फ्रेम होता है ना किसी भी चीज़ का, तो सबसे बड़ा जो फ्रेम है या जो बॉक्स है वो जिंदगी है, और उसके अंदर मुश्किलात भी हैं, उसके अंदर आसानियां भी हैं, उसके अंदर मुस्कुराहट भी है, उसके अंदर सुकून भी है। तो काफी एक बड़ा फ्रेम है। कहते हैं कि आपको खुशी गमी जोड़ा होता है, आपके साथ हर चीज का एक कपल होता है। तो वो ऐसे ही होता है, बाज़ औक़ात इंसान कहता है कि यार ये मेरे ऊपर मुश्किल आई है और छोड़ दो, बस अब सब खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। बेशक ऐसी। तो जिंदगी में क्या चीज खोई और क्या पाई, जिसका खोने का बहुत ज्यादा दुख हुआ हो और पाने की बहुत ज्यादा खुशी हुई हो? जिंदगी में बहुत कुछ पाया भी और बहुत कुछ खोया भी। जिंदगी की मैंने आपको बताया कि एक पूरा फ्रेम है जिसके अंदर खुशियां भी हैं, जिसके अंदर गमियां भी हैं। तो ये कह सकता हूं कि खुदा की ज़ात का बड़ा शुक्र है कि उसने कमियों से ज़्यादा उसमें जो है बढ़तरी दी है, बेहतरी जो चीज़ है वो दी है। तो जहाँ तक खोने की बातें हैं, तो वो हम कुरान की आयत जब इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं तो उसमें है कि जो तमाम चीज़ें हमें अनायत की गई हैं तो ये खुदा की तरफ से हैं। तो खोने का इस वजह से कोई ऐसा सच नहीं है कि खो दिया, मतलब चाहे कोई इंसान खोया हो, चाहे कोई चीज खो दी हो, चाहे कोई मंजिल खो दी हो, चाहे किसी रास्ते से भटक गया हो, तो ये तमाम तर चीजें जो हैं ये जिंदगी का एक हिस्सा थी, सो गुजर गई। हाँ, पाया बहुत कुछ, मतलब नए एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ थे। जहां कुछ खो रहा था वहां कुछ ना कुछ पा रहा था, मतलब जहां आपको कोई चीज जा रही थी आपके हाथ से, वहां कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए पड़ा था। कुरान की आयत का मफहूम भी है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो जहां पे आप कुछ खो रहे हैं तो वहां आप कुछ ना कुछ इन गेन कर रहे होंगे। ये नहीं है कि अच्छा बुरा वो एक अलग डिस्क्रिमिनेशन है कि आप उसको किस हवाले से देख रहे हैं, मगर क्योंकि जिंदगी है, और जिंदगी वो सागिर सिद्दीकी ने कहा था, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। सो मुश्किलात आई, और वो मर्द नहीं जो डर जाएं हालात के खूनी मंजर से, हाँ। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो वो जो मुश्किलात थी उनको खुदा की ज़ात ने करम किया और वो आसानियों में बदलती गई, और आज हम यहाँ बैठे आपके साथ चाय पी रहे हैं और टी टाइम कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें छोटे जरार की, बचपन वाले, तो वो कैसा था? अच्छा, मैंने कहा छोटे जरार की, जो आपने जहाँ से शुरू किया वालिद साहब से। अच्छा, उस छोटे जरार की भी तरफ हम आएंगे, लेकिन आपकी तरफ हम आना चाह रहे हैं कि आपका बचपन कैसा था? बचपन, वो हमारे एक दोस्त हैं ज़ीशान, तो उनका बचपन वो बताते हैं कि जी इलाहाद में गुजरा, और मौलवी साहब, और एक कॉन्सेप्ट है, शायद वो प्रोग्राम देखें भी। अच्छा। तो हमारा जो खानदान था, जो वो एक मजहबी अटैचमेंट के साथ बड़ा उनका ताल्लुक था। तो मुझे याद है कि मैं शायद सवा तीन साल का था। हाँ। तो एक महफिल बर्पा हुई और उन महफिल का आगाज़ हुआ, तो मुझे बड़ा शौक कि यार ये लोग जो स्टेज पे जाते हैं मुझे भी यहाँ जाना चाहिए। तो मैंने वाल साहब से इसरार किया। मामू की बड़ी सपोर्ट हासिल होती थी क्योंकि वो खुद अपने ज़माने तालिब इल्म में डिबेटर रहे, एक बड़ा नाम कमाया। फिर एक उनकी टीचिंग्स थी जो आज मैं भी यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ जी स्टेज पे जाओ। स्टेज पे गए तो एक वो जो जिंदगी की चाशनी थी ना, जो वो लोगों को फेस करना, वो मिला। तो बचपन से ही फिर वो एक जिस तरह कहते हैं ना, खुल के जीने का मौका मिल गया। हाँ। ठीक है, फिर वालिदैन की सपोर्ट थी, मगर मैं समझता हूँ कि शायद मेरा जो बेहतरीन दोस्त है वो मेरे वालिद के सिवा कोई नहीं है। मामू हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं एंड पे हर तरह से, बाकी अहलो अयाल हैं, सारी चीज़ें, मगर क्योंकि वाल साहब की सपोर्ट थी तो वो जैसे मुझे दिल करता था, ठीक है, हाँ, वो गाइड जरूर करते थे, ठीक है, वो बताते थे कि बेटा जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझते जा रहे हो और करते जा रहे हो। हाँ, ये मुश्किलात जरूर हैं, मगर जैसे दिल करे वैसे जियो। तो बचपन और जवानी
एक जैसी गुजरी, अयाशी में गुजरी नहीं अयाशी तो आप नहीं कह सकते, सुकून में गुजरी। सुकून की वजह ये थी कि अयाशी का, लेकिन फिर कहा भी जाता है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो वो वाला कैसे सुकून आपको? हम खान साहब के इतने डाई हार्ट फॉलोअर नहीं है कि हम कह सके सुकून सिर्फ कब्र में। कब्र तो जिन्होंने देखी है वो बेहतर बता सकते हैं। तो ये तो एक खैर कब्र भी एक अलग टॉपिक है पूरे का पूरा, और उसका सुकून फिर एक मुख्तलिफ चीजें हैं। हाँ। तो आप जो कह रही हैं कि अयाशी में गुजरी, अयाशी इस वक्त नहीं थी, मतलब घर से मुझे याद है कि मेरे नाना बाबा जो थे वो मुझे 5 रुपए देकर भेजते थे, 5 रुपए का सिक्का होता था, बल्कि नोट हुआ करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो सुबह मेरी जागने की आदत होती थी, भी स्कूल जाना है जी, बिल्कुल हमारे घर से करीबन 500 मीटर के फासले पर स्कूल था, तो बाबा छोड़ने जाते थे कभी, तो बाबा जी आके ना केक रस के 2 वो जो पीसेस होते थे वो रख जाते थे, और साथ 5 रुपए का नोट जो था अच्छा। वो रख कर चले जाते, तो बड़ा वो मजा होता था उसमें। वो अगर आप उसे अयाशी कहें तो फिर तो सारे अयाश हैं। मगर ये है कि कुछ लिमिटेशंस भी थी, क्योंकि एक जो साद निस्बत है सादात की, उस वजह से था कि आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बचपन का हो या बड़ा हो या जो भी है, तो उस वजह से जिम्मेदारी का जो अंसर था वो ज्यादा था हर हवाले से। मतलब मैं 4-5 साल से अब्बू के साथ जाना महफिल में, ये वो चीजें, मतलब कि तो वो सही मजे का बचपन, मजे का बचपन, मैं उसे कह सकता हूँ कि इतना बोर बचपन नहीं गुजरा, थोड़ा बहुत रंगीन नहीं था, खूबसूरत जरूर था। तो जी नाज़रीन, हम लोगों की गुफ्तगू जारी है, बड़े मजा आ रहा है मुझे, और यकीनन आपको भी देखने में मजा आ रहा होगा और आप आगे का वेट कर रहे होंगे। लेकिन हम प्रोग्राम में आगे बढ़े इससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्जा में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था बातचीत करने में, बड़ा अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। इवन जरार ने ये बताया कि इनको बचपन में 5 रुपए मिलते थे, तो मैं अपना बताऊं तो हम लोगों को हाँ ये होता था कि अम्मियाँ, ख़ास तौर पे अम्मियाँ ये होती हैं कि ईदी के पैसे हों तो वो अपने पास रख लेती हैं, बच्चों को डरा धमका के, और कहती हैं कि तुम्हारे लिए ही हमने रखना है या जोड़ना है, जो भी था। तो हमें 2-2 रुपए मिलते थे, और जब बच्चे हमें तंग करते थे कि अच्छा 2-2 रुपए इन लोगों को, तो फिर वो आगे से कहती थी उन्हें तो वो भी नहीं मिलते, आप लोग तो खुशकिस्मत हो कि आपको मिलते हैं। तो आपने 5 रुपए की बात की तो बड़ा मैं अमीर फील कर रही थी कि आपको, ये तो अमीर थे, हम तो फिर भी 2-2 मैंने ईदी के हवाले से आज ये हुआ करता था मुझे कि ईदें जो मिलनी वो मेरे पास होता था, मतलब मैं ये नहीं होता था फिर मैं उसमें से बाहर जाना, वो उड़ा देना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, तो उसमें अयाशी जरूर थी। ईद का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था वो जरा, क्योंकि एक मोहल्ले में और जो कम्युनिटी थी उसके दोस्त अहबाब थे कुछ, तो उनके साथ निकल जाना ईद पे थोड़ा बहुत। एक दफा मैं गुम भी हो गया, खैर वो एक तवील कहानी है, बाद में कैसे ढूंढा, क्या मसाइल बने, बर्थडे पोस्ट फिर कभी। अच्छा, बात हो रही थी छोटे जरार की, आपकी तो बात हो गई, जो आपका छोटा जरार है उसकी और आप में क्या, मतलब कि एक होता है इंसान में थोड़ी सी सिमिलरिटीज होती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं, तो उसमें क्या है, नेचर वाइज कैसे हैं या कैसे, उसके बारे में थोड़ा। वो पुराने लोग हुआ करते थे तो वो कहते थे जिसकी गुट्टी होती है ना, हाँ। ठीक है, बच्चा उसी पे जाता है। अच्छा। तो मुझे मेरे मामू की गुट्टी जो थी, हाँ। क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल पर्सन, हमारे अगर खानदान में कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा या आप उसे कह सकते हैं कि तालीम की तरफ गए, हाँ। तो मामू थे। अच्छा। तो वो उस टाइम एमए कर रहे थे जब मैं पैदा हुआ, एमए इंग्लिश कर रहे थे, तो मामू को कहा गया भी आप ऐसे घुट्टी डालें। अच्छा। तो उसी वजह से किताबों की रगबाज और ये वो सारी चीजें। अच्छा, अब बच्चे की बारी आई तो सारा ने कहा जी फिर भाई ना मामू से, मतलब जो है नाना बाबा जो उसके बनते हैं, हाँ। उनसे घुट्टी दिलवाते हैं। अच्छा, अब्बू क्योंकि मेरे थोड़ी सख्त नेचर के भी हैं, फ्रेंडली बहुत हैं, मगर थोड़ा सा उनके अंदर वो सख्ती का पन है, तो सारा ने कहा नहीं, ये जो बच्चा है ना इसे, तो वो हुआ इस तरह, अभी इकट्ठी ना वो घुट्टी डाली। अच्छा। तो आज साल के बाद, मतलब अभी तो 1.25 साल का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, तो आज भी उसके अंदर वो आंसर नजर आते हैं, बाबा जी वाले भी और जो नाना बाबा के दूसरे हैं वो भी नजर आते हैं चीजों में। उसकी वजह ये है कि ममासलियत जो है ना हम में, वो थोड़ा सा सख्त मिजाज है, ठीक है, अभी से, मतलब अभी उसे कोई चीज आप ना दें, फर्ज करें मैंने कहा ये चाय मेरी है, ठीक है, ये चाय मैंने पीनी है, ठीक है, तो उसने अगर कह दिया ना भाई चाय वो पिएगा, तो फिर वो पिएगा, फिर आप जो मर्जी करें उसके साथ, उसने कहना ये चीज मेरी है, हाँ। मतलब हाँ ये चीज है उसके अंदर, मुझे अच्छा भी लगता है कि अपना जो हक है वो लेने की कोशिश करता है। आजकल तो हक छीनना पड़ता है, तो वो उस हवाले से काफी चीजों पे रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आजकल हक मेरे ख्याल से छीनना लाजमी हो गया है, क्योंकि लोग ऐसे देते भी नहीं है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। आगे बढ़ते हैं, चले मुझे ये बताएं जरार कि आपके नजदीक
ایک ہر انسان کی زندگی میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے محبت کا ایلیمنٹ, وہ کیا ہے؟ محبت میرے لیے قابل نفرت چیز ہے. اچھا نہیں, یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں, یا وہ ملی نہیں یا کیا چیز تھا؟ نہیں, جو مل جائے وہ محبت ہی نہیں ہوتی, محبت ہوتی لا حاصل ہے. آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ادھوری کہانی, بھائی عشق وہی سچا ہوتا ہے جو حاصل نہیں ہوتا. نہیں, عشق تو ایک الگ ہے, محبت جو ہے وہ ایک الگ سینیریو ہے. اچھا, محبت ایک سیڑھی کا نام ہے اور عشق تو خیر منزل کا نام ہے. تو محبت جو ہے وہ اس وجہ سے قابل نفرت ہے کہ معاشرے نے اسے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, معاشرتی رویوں پہ اگر ہم جائیں, ویسے تو محبت لفظ ہی اتنا خوبصورت ہے, اتنا میٹھا ہے کہ زبان ٹھنڈی ہو جاتی ہے آپ کی, ٹھنڈے جوکس کی طرح نہیں مگر اس حوالے سے تو قابل نفرت اس وجہ سے ہے کہ جو دیکھیں, ہم جب آپ بھی سوال پوچھا ہوگا تو محبت کے ایک عنصر ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ آج کل کی جو ہمارے اندر محبت ایک کا جو ولولہ سا جاگتا ہے, یا جیسے میں عام زبان میں کہتا ہوں عادت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو محبت نہیں ہوتی, لوگوں کو عادت ہوتی ہے, اور آج کل اسے نام جو ہے وہ محبت کا دیا جاتا ہے. وہ اس وجہ سے قابل نفرت ہے کہ اس کا جو سینیریو ہے, پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. محبت ہوا کرتی تھی پرانے وقتوں کی, چائے سے بھی محبت, جیسے آج ہم پی رہے ہیں تو چائے سے بھی محبت ہوتی تھی, مگر کیونکہ جب سے محبت صرف ایک صنف نازک پہ چلی گئی ہے تو پھر محبت قابل نفرت ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہا جانا ہر چیز کا وہ حق ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز چاہی جائے یہ اس کا حق ہے. اگر صرف ایک چاہا جا تو پھر باقیوں کو تو اس سے قابل نفرت ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں جسے محبت کرنی ہے ہم سے کرے, اور اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہمارے لیے قابل نفرت باقی دنیا آئے تو ہم سے محبت کرے. اچھا, لیکن اب نہیں, اب پاسبل نہیں ہے. آپ یہ چیز مت بھولیں کہ آپ والد ہیں. دیکھیں اسلام بھی تو 4 کی اجازت دیتا ہے لیکن معاشرہ نہیں دیتا, اسی وجہ سے قابل نفرت ہے محبت. یہ بھی ہے. خیر, اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جتنی زیادہ کامیابیاں ماشاءاللہ سے آپ نے سمیٹی ہیں اور انسان ناکام بھی ہوتا ہے, وہ کون سی ناکامی تھی جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہو گئے؟ وہ ناکامی مجھے یاد ہے, مطلب اگر ڈیبیٹس کے حوالے سے صرف بات کروں یا باقی دو ایک الگ سینیریو, ڈیبیٹس میں مجھے یاد ہے کہ بلکہ آپ اس پروگرام کو چیئر کر رہی تھیں, اس چیز کو میں یہ جو ناظرین ہیں ان کو بتانا چاہوں گا, آپ اس پروگرام کو چیئر کر رہی تھیں گورنمنٹ کالج میں, آئی تھنک سو پاکستان ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا ایک کمپٹیشن تھا. تو اس میں جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے سامنے, تو میں بڑا خوش ہوا پہلے انیشیل ٹائم پہ. میرے ساتھ اس وقت میرے دوست بن کر گئے اور بعد میں میرے استاد بھی بنے حسنین بھائی. تو وہ دیکھا ان چیز کو مارکس کرنا, تو میں نے بڑا خوش ہوا چیزوں پہ, یار بڑی زبردست ہو گئی, میں جیت گیا. اچھا, حسنین بھائی تقریر کر کے آئے تو ان کے, اب میرے سامنے جو جج بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس ان کے نمبر کم تھے, اور میرے اوپر میں بڑا خوش کہ دیکھو یار آج اپنے دوست کو بھی ہرا دیا, یہ وہ ساری چیزیں. تو اچھا, اب معاملہ کیا بنا کہ جب ریزلٹس آئے تو میں بالکل کمپٹیشن سے فارغ, اور حسنین بھائی ونر قرار دیے, کیونکہ خیر ان کا ایک ایکسپیرینس تھا, وہ مجھے تو اس چیز کا نہیں اندازہ تھا کہ کیا چیز ہو رہی ہے کیا حوالے سے. تو میں وہاں سے لوٹا, میں نے کہا یار یہ تو بڑا غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ جس شخص کو جیتنے کا وہ ایک لذت پڑ جائے, وہ جب ہارتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ جو لذت تھی وہ ٹوٹنے لگ پڑی, مطلب ایک کمپٹیشن جیت رہا ہوں اچانک ہار گیا, یار یہ تو بڑا غلط ہوا. خیر اس کے بعد جب میں پہنچا واپس تو میں نے کہا جی میں نے آج کے بعد کوئی کمپٹیشن نہیں کرنا. خیر میں نے اپنے دوست کو حسنین بھائی کو کال کی, تو ان کا بھی کوئی بات نہیں ہے تم کرو کمپٹیشن. تو میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا. خیر اس کے کچھ لمحے بعد ایک کمپٹیشن آ گیا, ای ایم ای کالج کا کمپٹیشن تھا. تو وہ میں بولا, تو اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ جج حسنین بھائی ہیں. ٹھیک ہے, حسنین بھائی مجھے انسسٹ کریں یار تم جاؤ 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 جاؤ, وہ مجھے انکریج کر رہے تھے کہ یار تم وہاں پہ جا کے نا بولو کچھ نہ کچھ. خیر میں اپنی یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ میری ایفرٹس بھی تھی, یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کچھ ایفرٹس کی, یہ بعد میں بلیم بھی بنتا ہے. خیر وہ ویسا پوائنٹ تھا جس میں میں نے ٹرن کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ میرے اندر وہ آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اداسی چھا جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈپریشن کا کہ یار میں پتہ نہیں کیوں ہار گیا, میرے اندر وہ کیپبلٹیز نہیں ہے, میرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں, تو ایک اداسی کا لمحہ وہ آپ کے اندر آ جاتا. تو میں نے کہا یار یہ تو نہیں ہو. خیر میں کمپٹیشن بولنے گیا اور میں 3rd آ گیا. اچھا اب تھوڑا بہت اسٹیبل سکون آ رہا ہے کہ جی 3rd آ گیا ہوں. اچھا کمپٹیشن کیا بنا کہ کمپٹیشن ہو جاتا ہے اور 2nd ڈے 3rd ڈے ان کی پرائز سرمنی ہوتی ہے. اچھا 3rd ڈے مجھے کال آتی ہے, 3rd پرائز کا مطلب صرف سرٹیفکیٹ تھا جو وہاں پہ انہوں نے مجھے دے دیا. اگلے دن مجھے کال آتی ہے, ابھی آپ کا نام جرار ہے. میں نے کہا جی میں بیڈ پہ سویا ہوا سکون سے. ٹھیک ہے جی, آپ کی 2nd پوزیشن. میں نے کہا نہیں میری 3rd تھی, آپ ریکنفرم کریں. انہوں نے کہا نہیں 2nd ہے, کیونکہ جو 2nd پہ لڑکا تھا اس کے اور 1st کے مارکس کولائڈ کر گیا, تو وہ 1st ہو گئے, آپ 2nd ہو گئے. میں وہاں سے اٹھا, سارے برش یہ وہ سب ختم ہو گئی. تو وہاں سے گیا, تو وہاں سمجھ آئی کہ نہیں ایک کمپٹیشن ہار گیا تو کوئی نہیں, بڑے کمپٹیشن. پھر وہ ویسا موقع تھا کہ اس کے بعد میں نے پھر
मतलब 50 के राउंड अबाउट जो कंपटीशन थे वो डेट, और फिर अगले मतलब वो 26 फरवरी आज मुझे याद है कि 26 फेब 2018 थी, और फिर 26 फेब 2019 में मैंने फिर कंपटीशन हारा कोई। बिल्कुल ऐसा उससे ही पहले है। मैं कंपटीशन लगातार जीता रहा पूरा साल कोई। मैं खुद यही सोचती हूँ और कहती भी हूँ कि जब तक आप हारते नहीं हो आपको जीत का मजा नहीं आता। बेशक ऐसे और इसी तरह और हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं, हार के भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, कुछ जीत के जीतते भी हैं बहुत कुछ सीखते हैं, तो कुछ सीखने वालों सीखते में हैं। नाम होना चाहिए, बड़ा बड़ा सूदमंद है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मुझे ये बताइए कि लाइफ का बहुत मजे का मोमेंट, मेमोरेबल मोमेंट के आज भी याद करते हो तो बड़ा मजा आता होगा सोच के। वो भी डिबेट्स के हवाले से, क्योंकि जिंदगी एक डिबेट्स में गुजरी है। बाकी तो बहुत ज्यादा मोमेंट्स हैं, वालिदैन का प्यार, उनकी हाँ। जो एक मोहब्बत होती है, हाँ। वो बहुत जबरदस्त मोमेंट था। मगर सबसे बेस्ट मोमेंट कुछ हैं, मतलब बहुत सारे हैं, मगर उनमें से सबसे बेस्ट हैं तो मेरे जो मामू का मैंने जिक्र किया, वो मुझे डिबेट्स के हवाले से गाइड करते थे। वालिद साहब का एक बड़ा प्यार मोहब्बत का अंसर था। तो मुझे मामू कहते थे कि तुम्हारी पहचान उस दिन होगी जब तुम्हारे नाम से हमें जानेंगे, हमारे नाम से तुम्हें नहीं जानेंगे, तुम्हारे नाम से हमें जानेंगे। तो वो एक ऐसा मोमेंट आया कि मैं कंपटीशन एक टीवी चैनल पर गया, वहां मैं जीता, फिर बाइक विन किया। तो एक रैंडम कोई बंदा आया, अबू का दोस्त था सारी चीज़ों पे, तो उसने मुझे कहा कि आप तो वही नहीं है जो जनाब आपने कॉमेडी बड़ी अच्छी तकरीर की। तो वालिद साहब उस टाइम ना, वो उनकी मैं खुशी, जो चेहरे पे खुशी थी, वो मैं समझता था कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट वो था कि मेरे वजह से मेरे वालिद के चेहरे पर जो खुशी थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आज वो मौका आया है कि जब तुम्हारी वजह से मुझे कोई एक नाम हुआ। फिर उसके बाद खैर बड़े मोमेंट्स आए, बड़े बड़े सेलिब्रेट्स की बड़ी कहानी है, बड़ी तवील कहानी है चीज़ों। जब आप कामयाब होते रहते हो आपको मिलती रहती है तो आपको पहले जैसी खुशी नहीं रहती। खुशी नहीं रहती। अक्सर ये होता है कि हम लोगों के जैसे डिबेटर हैं, हम लोग भी रह चुके हैं, आप भी रह चुके हैं, हम लोग ये होता है हमारे लिए शील्ड्स अवार्ड्स बहुत मैटर करते हैं। अब नहीं करते। नहीं मैं अपनी बात करूं तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर एक जगह आपको मिल रहे हो, पैसे मिल रहे हो अच्छे खासे, और दूसरी जगह शील्ड, तो कहाँ जाओगी? तो मैं कहती हूँ मैं शील्ड लेने। तो कहते हैं बड़ी सस्ती हो तुम। तो मतलब कि मुझे अभी तक वैसे महसूस होता है कि यार नहीं, मतलब कि इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी आपको क्रेज वो नहीं खत्म होता। अच्छा शील्ड्स की आपने बात की तो इस वजह से क्रेज खत्म हो गया है कि मैंने स्टार्ट में, मुझे भी इस तरह का शौक, जैसा हर डिबेटर का, हर शख्स का ये शौक होता है कि जी शील्ड्स होनी चाहिए, पैसों की कोई मान। हालांकि यूनिवर्सिटी ने मुझे कैश प्राइजेस की मद में भी बहुत पैसे खैर दिए, यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मोहब्बत का आंसर भी था। मगर शील्ड की जगह जहाँ पे होता था कि यार यहाँ पे जाने, बल्कि मुझे याद है जंग का कंपटीशन, वहाँ पे एक हमारे दोस्त ने इस्लाम ने कंपटीशन कराया, तो मैंने उससे कहा कि यार मैं फ्रॉम द इस्लामाबाद में जंग आ रहा हूँ, शील्ड मेरी होनी चाहिए, बाकी कुछ मिले ना मिले, मैं कम से कम पीछे जो है ना। खैर उन्होंने, फिर मैं वहां जीत भी गया। वो विनर की भी शील्ड थी और साथ वो थी, क्या कहते हैं जी, गेस्ट ऑफ ऑनर की। अच्छा। तो वो दोनों शील्डें मैंने बड़ी तस्वीर से, उस टाइम बड़ा क्रेज होता था। मगर बाद में हुआ इस तरह, भी शादी होगी तो शादी के बाद मैंने वो बड़ा नहीं, वो अवार्ड तो खैर एक तवील कहानी है उस पे। मगर क्योंकि वो मैंने जो रैक था तो वो वहां पे सजा दी शील्ड, ठीक है, और बड़ा खुश होता था हर तीसरे चौथे दिन एक वो नई शील्ड ऐड की और पूरी वो ना रैक की तस्वीर बना के पोस्ट किया करता। फिर अल्लाह ने नेमत अता की, बेटा अता किया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो जगह थी ना, वो शील्डों की कम होना शुरू होगी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, शील्डें कम हो रही है, बढ़नी चाहिए। मैं आ जाता हूँ, जजमेंट करता हूँ कहीं पर तो शील्डें बढ़ जाती हैं, कम हो रही है। वो पता चला कि बच्चे की चीजें आ रही हैं जी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। और फिर एक ऐसा लम्हा आया, वो सारी उठ के ऊपर वाले शेल्फ में चली गई और आज वहां पे कोई शील्ड नहीं है। अच्छा, तो मैं सोचता हूँ यार ये 2 साल मैं इधर उधर मारा फिरता था, वो फ्रॉम द टेक्सास इस्लामाबाद आना, जंग, फैसलाबाद, लाहौर, इधर उधर कराची तक जाना, तो वो सारी शील्ड्स के लिए हुआ करता था। मगर वो शील्ड्स अब ऊपर पड़ी है, शायद मुझे नहीं याद, ठीक है, कि अभी कोई शील्ड मेरी नजर से पिछले 6 महीनों से भी गुजरी हो। तो चले, बहुत अच्छी मजे की गुफ्तगू हो रही है। मुझे ये बताएं कि लाइफ का रिग्रेट क्या है, मतलब कि आपको बदतरीन मोमेंट फील्ड की चॉइस। अच्छा, क्यों? जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी बेसिकली। रिग्रेट उसे नहीं कहता, मतलब मैंने आज तक किसी चीज को वो नहीं कहा कि इस पे मुझे कोई पशेमानी हुई। हाँ, बहुत सारे मौके ऐसे आए जहां पे मायूसी हुई कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, किया भी, फिर उस फैसले के साथ स्टैंड किया कि ठीक था मेरा फैसला, शायद मैं गलत भी था, ठीक है, मगर अपने फैसले को मैं मुकद्दम इस वजह से रखता था कि वो फैसला मेरा अपना लिया हुआ था। चीज़ों पे आज भी कई उस वजह से मैंने एक ज़िंदगी ने टर्नओवर भी किया, बड़ी मुश्किलात भी आई और एक पूरी ज़िंदगी का 360 जो एंगल है वो चेंज हुआ। मगर क्योंकि अपने फैसलों के साथ खड़ा रहा कि नहीं, मैंने जो फैसला किया है, मैंने जो बात की है, क्योंकि वो मेरी जबान से निकली है। हाँ, ये नहीं है कि मैं उससे पीछे हट रहा हूँ, गलत कह दिया, हाँ गलत कहा है तो मुझे उसके साथ स्टैंड करना चाहिए।
क्यों मैंने गलत कहा, ये मुझे अपने अंदर सवाल करना चाहिए, वो बिल्कुल मेरा ऐसे ही। अपने अंदर चीज़ों। तो रिग्रेट जो था वो फील्ड के हवाले से इस वजह से था कि मैं जब 4th 5th सेमेस्टर में पहुंचा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी ये साइड नहीं थी। मुझे इंजीनियरिंग, इधर- टाइटल तो इंजीनियरिंग का आ जाता है, आज मैं कह सकता हूँ कि इंजीनियर सैयद जरार अज़हर आपके सामने, मगर क्योंकि वो चाशनी, वो चीज़ नहीं, फिर मैंने शफल किया, मैं मैथ्स कॉम या MBA का सोच रहा हूँ आगे, तो मार्केटिंग की आपका वो वाला हिसाब हो गया जैसे मैंने साइकोलॉजी कर करके लास्ट में मास्टर्स कर लिया उर्दू लिटरेचर में। तो वो चीज़ हो गई कि वहां पर अपना जो है वो बिल्कुल चेंज साइड पे चले गए। लेकिन हाँ, उर्दू लिटरेचर में इंटरेस्ट भी था, और दूसरा ये कि अपनी अपनी जबान होती है और उससे मोहब्बत होती है शुरू से ही, बचपन से। वो साइकोलॉजी, वो बायो में मजा नहीं आता जो अपनी जबान उर्दू। कल वैसे रिग्रेट मुझे तब हुआ जब मैंने एक पेपर दिया तो उसमें तकरीबन को 50 एक नंबर ना बायो के आए हुए थे, तो मैं सोच रहा था यार उस टाइम बायो रख लेता तो आज पेपर तो पास हो जाता। तो रिग्रेट होते रहते हैं छोटे मोटे, पर ये है कि रिग्रेट जिंदगी का बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में लेके गया हो। कुछ ऐसे रिग्रेट है जो बताए जा सकते हैं, कुछ रिग्रेट है जो बताए नहीं जा सकते। वो भी कैमरे के कहते हैं सामने। पर्दे के पीछे की बातें, कुछ पर्दे की आगे की बातें। खैर, एक जिंदगी का आंसर था, वो हो गया, और खुदा ने बस उसके जो नेमल बदल था वो अच्छा अदा किया, और बस खुदा। तो जी नाज़रीन, ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में दोबारा से आखिरी दफ़ा खुश आमदीद कहती हूँ। जरार से बहुत मज़े की गुफ्तगू हो रही थी। एक सवाल स्पेशल मैंने आपके लिए रखा था कि आपने एक दिन पहले, कल शायद आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट लगाई जिसमें एक तस्वीर थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था दुनिया में 2 लोग ही शरीफ हैं, और वो दोनों इस तस्वीर में मौजूद हैं। पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि वो दूसरा शख्स आपके साथ था कौन, और उसके बाद कि आपने क्या सोच के शरीफ कहा, और तीसरी बात कि वो पोस्ट लगाई क्यों। अच्छा, इससे पहले मैं बताने लगूं कि ये प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद मैं एक और पोस्ट लगाऊंगा और यही कैप्शन उसका यही होगा। शरीफ है चीज़ों में। तो उसमें अब चीज़ें क्या हैं, उसमें वो बिल्कुल ही हमारे साथ एक मायनाज शख्सियत है, मायनाज शख्सियत है, और इस टाइम सोशल मीडिया पे उनके चर्चे हैं, आए दूसरे तीसरे दिन उनका चर्चा होता रहता है। मगर वो शख्सियत मौलाना हजरत मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं। हाँ। और उनके साथ हमारा इंटरव्यू था, मैं जिस चैनल के साथ काम करता हूँ। अच्छा। तो वो हम गए वहाँ पे इंटरव्यू करने। पहले तो मुफ्ती साहब एक, खैर अगर उनकी शख्सियत को देखा जाए तो बड़े रंगीन मिजाज भी है, दिलचस्प जो है ना वो उनकी एक है। मैंने 4 घंटे उनके साथ बैठा, खाना खाया, चाय पी, और बड़ा मज़ा आया मुफ्ती साहब के साथ। अच्छा, मैंने जब उनके साथ गुफ्तगू की ना, पहले तो वो बड़ा हेजिटेट कर रहे थे चीज़ों पे, यार ऐसे है वैसे है, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैंने फलां कर दिया। बाद में उनको एक कॉल आ गई। हाँ। तो ना वो अक्सर मैं भी ना कॉल जब सुनता हूँ ना तो मैं लाउड स्पीकर कर देता हूँ, मतलब अच्छा। एक नॉर्मल चीज़ है। तो उसका ये होता है कि चलो सुकून से बंदा एक टेंशन फ्री होके इधर उधर के काम भी कर रहा था, उधर कर रहा। तो वो जैसे मैंने किया ना, तो वो मुफ्ती साहब का एक मैसेज आया मैसेंजर पे। अच्छा, हमने कहा पता नहीं शायद मुफ्ती साहब कोई ना खास काम आ गया है मुफ्ती साहब का कुछ। तो कहते 1 मिनट रुको, मुफ्ती साहब ने टोपी शोपी अपनी पहनी। अच्छा, मतलब इंटरव्यू कर रहे थे तब टोपी शोपी पहन के मेरे बाद में उतार देते हैं, मतलब ज्यादा उन्हें ग्लासेस यूज करते हैं और ना टोपी यूज करते हैं। खैर उन्होंने टोपी शोपी पहनी है, मैंने कहा पता नहीं अल्लाह खैर करेगा। मुफ्ती साहब ने कहा जी वीडियो कॉल पे आ जाए। ठीक है, वो अच्छा उनके, खैर ये ऑन एयर बात भी चल रही है, मगर मुफ्ती साहब की बात जिंदगी में जानते नहीं है जो लोग उनके करीब रहे, कि वो जिस भी शख्स के साथ कोई बात करनी है वीडियो कॉल पर करते हैं। अच्छा। ठीक है, अब वो वीडियो कॉल कितनी सच्ची है झूठी है उसमें हम कोई तबसरा नहीं करते, मगर उनका वो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो मुफ्ती साहब जो है ना, ये जो शराफत इनके अंदर है वो मेरे अंदर भी आ गई, तो फिर कामयाब है। आपको थोड़ी सी सिमिलरिटीज महसूस हुई कि यार ये मेरे जैसे ही है। नहीं, इतनी सिमिलरिटीज नहीं है जितनी उनके अंदर है। वो खैर हमारे मुर्शिद गुरु कह सकते हैं, वो बड़े लोग हैं, बड़े आसमुख शख्सियत है। खैर उनकी एक जो है वो शख्सियत, वो मजे की शख्सियत है। अच्छा लगा था वो पोस्ट पढ़ के, मुझे खुशी महसूस हुई कि इतने भी शरीफ लोग हैं। मैंने कहा अच्छा देखे ना, वो कहते हैं एक हदीस मुबारक भी है और खैर अकवाल भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ना, सही बात है, वो बड़ा खूबसूरत इबादत के तौर पर भी है किसी। तो हमने कहा चलो यार, वो मैं कर रहा था कि मेरी सोशल मीडिया की सब ज्यादा जिस पे लाइक्स और कमेंट्स और रिएक्ट्स आ रहे थे उस पर अच्छा खासा उस पे ना रिएक्ट्स आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं, 2 ऑप्शन है, एक चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले एक ही चूज करना पड़ेगा। हाँ, एक ही, बीच का कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, बीच का कोई ऑप्शन नहीं। फिरदौस आशिक अवान या शीरी मज़ारी? देखें जी, शीरी मज़ारी भी अच्छी हैं, मगर फिरदौस आशिक अवान आपा, क्योंकि उनका मिजाज मेरे साथ मिलता है। अच्छा। तो नहीं आपका
آپ کے ساتھ ملتا ہے یا ان کے ساتھ؟ نہیں, فردوس عاشق زمان صاحبہ خیر ان کی ایک اسٹرگل ہے پالیٹکس میں, باقی چیزوں پہ, اور خیر ان کا دبنگ سٹائل پسند ہے, اس وجہ سے فردوس عاشق عوام. امجد صابری یا راحت فتح علی خان؟ راحت صاحب کا ایک کنٹریبیوشن ہے, اور امجد صابری اللہ پاک انہیں غریق کرامت کرے. آمین, آمین. تو دونوں کی بہت کنٹریبیوشن ہے. لیجنڈ میں سے کسی کو چوز نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ کہیں کہ کوئی بہت بڑی شخصیات ہیں تو ان کا خیر بہت ادب کے لیے بہت. میرا یا ریما؟ متھیرا. انہوں نے کہا تھا کوئی سینٹر کا آپشن نہیں ہے, میرا یا ریما. میرا بھی اچھی ہے, ریما بھی اچھی ہے, میرا بھی بری ہے, ریما بھی بری ہے. تو اسی وجہ سے غالب یا جان ایریا؟ غالب دیکھی ہے. اچھا مووی ہے نا غالب, دیکھی ہے. تو سجل علی یا مہوش حیات؟ سجل علی. سجل علی احمد رضا میر کی وجہ سے, سجل علی کی وجہ سے نہیں. ہمارے مفتی صاحب کی طرح شوق الگ ہے. اور بیسٹ ٹک ٹاکر؟ بیسٹ ٹک ٹاکر سب کی فیوریٹ پرسنالٹی جنت مرزا. جنت مرزا سب سے زیادہ سوشل میڈیا سینسیشن. اب آپ کے پاس ایک لفظ ہے. ویسے ٹک ٹاکر کے نام پہ سیبا مرزا آج کل آپ کی نا بڑی اچھی آ رہی ہیں. کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک سے بڑا وہ لائکس میں دیکھ رہا تھا 6-7 ہزار لائکس کراس کر کے سیبا مرزا. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کو بہت مہربانی. ایک لفظ بولوں گی, آپ کے مائنڈ میں جو آتا ہے اس لفظ کو سوچ کے بتائیں گے. جلدی جلدی, ٹائم نہیں ہوگا. جلدی جلدی. ہاں, چاند. چاند سا روشن چہرہ. نہیں, سوچ کے کیا آتا ہے؟ کوئی دوشیزہ, کوئی مطلب کہ جلدی جلدی بتا. میرے والد کا چہرہ. اچھا, سیاسی جواب. پین. کیا چیز؟ پین قلم. اچھا, میں نے کہا پہلی تو محبت ہوتی ہے. پین ادب کا ایک ذریعہ, ادب کو پھیلانے کا ایک ذریعہ. خودی اقبال. سعادت حسن منٹو سچا لکھاری, بورڈ لکھاری مگر سچا لکھاری. پھول خوبصورت. محبت نفرت, قابل نفرت. خوبصورتی کون ہے خوبصورت یار اس پروگرام میں؟ یا تو میں خوبصورت ہوں یا آپ خوبصورت ہے, یا آپ چوائس کریں. اچھا نہیں, آپ نے مطلب پھر بھی مطلب کمپلیمنٹ نہیں کیا. مینڈک یا فراگ, جو بھی ہے. فراگ ڈائسیکشن, اس کی ہم نے بایو میں کی تھی ڈائسیکشن. سٹارز چمکتے. موویز انڈین موویز. اچھا. یونیورسٹی ہائی ٹیک. اسلام آباد شہر اقتدار. فیس بک. فیک بک. اچھا واقعی, پھر وہ شریفہ نہیں غلط. اچھا, وائی فائی پاسورڈ چاہیے بھائی, جس کا چاہیے وائی فائی کا پاسورڈ چاہیے. لڑکی یا عورت؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. برسات عاشقوں کا موسم. ہاں یہ بھی ہے. زندگی نہ ملے گی دوبارہ. موسیقی اگر تو فوک ہو تو پھر اچھا ہے, باقی بیٹ شیٹس والا. ٹی ٹائم with سیبا مرزا. یس, ٹی ٹائم with سیبا مرزا. تو جی ناظرین, ایسے سوال ہوئے, ریپڈ فائر کے کچھ کوسچنس تھے. آخر میں صرف جاتے جاتے ہم ان سے ایک بہت سی خوبصورت شعر سنیں گے, اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. تو جی سر ہمارے ناظرین کو ایک پیارا سا شعر سنائیں. ایک شعر اور پیارا بھی. چلے 2 شعر سناتے ہیں اور دونوں پیارے سناتے ہیں. جی جلدی. ایک میں حسنین بھائی ہمیشہ ان کو یاد کرتا ہوں, کسی پروگرام میں شاعری کا حوالہ ہو تو بہت ہے وہ حسین حسنین, ان کا مقطع ہے, خیر غزل بہت بڑی ہے. بہت ہے وہ حسین حسنین پر اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں. بہت ہے وہ حسین حسنین پر اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں. سنا ہے ایسے لوگوں میں وفاداری نہیں ہوتی. تو یہ, اور دوسرا چائے پہ ہے کہ مشروب سبھی معذر صحت ہم نے ترک کیے, ایک چھوڑی نہ گئی ہم سے یہ سالی چائے. تو خیر ٹی ٹائم جو ہے وہ چائے پہ اختتام. جی ناظرین, آج کا ٹی ٹائم کا اختتام جو ہے وہ ماشاءاللہ چائے کے ہی شعر پر ہوا ہے. تو مجھے اور جرار کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل پھر نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گی ٹی ٹائم ود سیبا مرزا میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.